Hello everyone, welcome to the first episode of Learner of the Week। और इस बार के हमारे लर्नर ऑफ द वीक हैं प्रनील शुक्ला। प्रनील, हाउ आर यू? Fine, sir. Perfectly fine. वेरी गुड। प्रनील, आप कहाँ से हैं? Sir, my hometown is Raebareli, and I'm currently residing in Sitapur, Uttar Pradesh. अच्छा, तो सीतापुर में क्या आप सिटी में रह रहे हैं या स्कूल में कहीं रहते हैं? मतलब आर यू इन अ बोर्डिंग स्कूल? Sir, my father is a teacher, and he teaches in a boarding school. That's why I live with him only in the ओके, boarding school in campus only. वेरी गुड वेरी गुड। तो आप नीट एस्पायरेंट हैं। नील, किस ईयर में देंगे आप? 2022 आई बिलीव। Sir, currently I'm in class 12th, and next year 2022 I'm going to give NEET. ठीक है, तो कैसी चल रही है पढ़ाई बच्चे आपकी? Sir, very nice, बहुत very बढ़िया। nice. Like, तो आप मतलब हमारे लेक्चर तो आप देखते ही हैं अन अकेडमी में, yeah. और भी कुछ चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं का, अपार्ट फ्रॉम जस्ट कमिंग टू द अन अकेडमी क्लासेस एंड द लेक्चर्स? Sir, for me, self studies are the most important. So that's why I focus on more on self studies, and in the unacademy classes too, I make my notes regularly. That's why. बहुत बढ़िया। और आप कौन कौन सी किताबों को रेफर करते हैं? विच बुक्स डू यू रेफर? So currently, I'm referring for physics it's DC Pandey, and for biology it's MTG, and for chemistry I use Arihant, ओके, तो and आप NCRT it's the most important for and all. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये तो बिल्कुल सही बात आपने कही। एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ना ही है। प्रनिल, मैंने आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा, आपने क्लास टेंथ भी काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्लियर किया था सीबीएसई। Yes, sir. तो आपका आगे चल कर के क्या एस्पिरेशन है? सिर्फ डॉक्टर बनना या उससे भी ऊपर कुछ? एनी रिसर्च? और जैसे कि अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, बच्चे आप देख रहे हैं हमारी कंट्री में, तो मतलब इसको लेकर के आपके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? क्या करना चाहते हैं? So from very early age, I've been always dreamt of a researcher, a research in any field, like it's of physics, chemistry, or it's in medicines. So that's why I choose biology for researching in medicines more. ओके, ग्रेट। तो आप आगे चल के रिसर्च फील्ड में ही जाना चाहते हैं, तो आपको क्या Yes, sir. पाथ पूरा क्लियर है कि हाउ यू विल क्लियर नीट एंड देन हाउ विल यू एंटर इनटू द रिसर्च फील्ड? Yes, sir, it's clear. I would be mastering in a disease after the MBBS, I guess. ओके ओके ओके, आपको सारा प्रोसेस पता है। अच्छा, आप Yeah. प्रणीत, कितने घंटे आप इन्वेस्ट करते हैं पर डे अपनी स्टडीज में? आपके सारे दोस्तों को भी पता चले कि द गुड वर्क Sir, यू आर डूइंग। apart from school, I invest around 5 to 6 hours in self study and 2 to 3 hours in an academy classes. 3 hours mostly in an academy classes. वेरी गुड। तो आपका टाइम मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? So sometimes there is problem in time managing because in completing the school assignments and in watching the lectures, sometimes I do not get time for this self study, and that's the thing that hurts me the most because या self study is the most important thing. तो आप अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाते हैं फॉर योर प्ले टाइम और सम एक्सरसाइज, या माइंड को थोड़ा Yes, sir. रिलैक्सेशन? My free time is always specific, like from 4 to 5 or 3 to 4. I would be taking a complete rest, and then sometimes I go out and have a walk. That's all I can do in this व्हाट आर योर lockdown. हॉबीज? आपकी हॉबीज क्या हैं? So, particularly, I love playing specific sport like table tennis and basketball. I also love playing games online, also like many sites and using some game apps. ओके। आपके तीन सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे बढ़िया आपको कौन सा लगता है और सबसे ज्यादा ग्रिप किस में है आपको? Sir, honestly speaking, I love chemistry the most, but in matter of grip, I should say biology. And वेरी, in specific in biology, zoology is better for me. जोलॉजी बेटर लगता है, मतलब बॉटनी का थोड़ा सा फोबिया है आपको भी? Uh, Sir, it's not like phobia, but sometimes it's little bit confusing.
That's it. हाँ, इज इट बोरिंग ऑल्सो एट टाइम्स कि कुछ स्पेशल नहीं पढ़ रहे हैं, बॉटनी के पोर्शन पढ़ रहे हैं? डू यू फील बोरिंग Sir, ऑल्सो? honestly speaking, specific concepts are like boring too, but some concepts are too much interesting in botany too. वेरी That's गुड। my सो यू experience. एंजॉय बॉटनी एज वेल। तो Yeah. प्रणील, आपके पेरेंट्स ओके हैं आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, रिसर्च, या जैसे आपने बताया आपके फादर खुद एक टीचर हैं, तो क्या पढ़ाते हैं आपके फादर? Sir, he's a professor in economics. ओह दैट्स नाइस। तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है कि आप उनकी फील्ड में जाएं या कुछ इस तरह का करें? Sir, he always promoted me for a specific which I would like, and but I like that in medicine. He promoted me for that. He didn't never force me for economics or any other subject. राइट राइट राइट। अच्छा, एक चीज़ और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम बच्चों से शेयर करते हैं, ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, मतलब इट्स बीन मोर देन अ ईयर, है ना? Yes, sir. सो हाउ डू यू थिंक कि आपके माइंड के ऊपर इसको लेकर के कुछ प्रेशर बनता है, कभी डिप्रेशन आता है या पढ़ने का मन नहीं करता है, ऐसा कुछ होता है कभी आपके साथ? Yes, sir. Many a times in this lockdown period, I felt this like I do not feel like studying anymore. Like I just get bored of studying and studying. Like I prefer to spend my time like spending my time like in with family, with playing with my sister, or just spending some in any other cause. राइट राइट राइट। सो हाउ डू यू कोप अप विद दिस? दीज आर द ओनली थिंग्स यू डू, या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए होता है, दैट यू सीक सम गाइडेंस फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर से कुछ गाइडेंस लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, या ऑटोमेटिकली आप ट्रैक पर आ जाते हैं? Sir, what I should say, like, I remain positive every time. And that's the best thing a person should do in these COVID times. By remaining positive every time in their life, they can calm their mind anytime if they remain positive. That's right, that's right. One more very important question that I ask to most of my students, that how do you kill your time? Because students do have a habit of killing the time by doing different activities. So do you also have any such part-time activity that kills your time also? Sir, as I said, gaming. I should say gaming kills my time. Okay, But so it's like I love playing games, so I never think that it kills my time. But because I also give some time to the studies, that's why. right, but are you really getting some time for physical sports or games which are involving physical activities? Sir, as you know, in this lockdown period, we can't go out and play. So, Else, I went to play basketball regularly with my friends before this COVID times. so that means you enjoy playing video games and you are also making use of your mobiles for that, right? Yes, honestly speaking, yes. So don't you think that it is creating overburden or stress on your mind, looking at the screen always? How do you cope up with this? Sir, I don't spend much time, like not more than 20 or 25 minutes in playing games. I don't spend much time. Like yeah, sometimes there is regular classes in online classes in school. So it's still 2:15 p.m. my class is going on in school, and that time I feel like my eyes are paining. But and then I take rest. Like having a nap is the Okay. best thing I can do. That's good enough, because nowadays the students also, when they are using mobile for studies, they also have a habit of continuously attached to the mobiles. So that really gives Yes, sir. strain to the eyes. In fact, we also discuss, कई बार हम भी डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ, कि बच्चे आपको कंटिन्यूअसली मोबाइल पर ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए। मतलब Yes, 10 sir. मिनट 15 मिनट, है ना, कि कुछ वक्त के बीच में आप थोड़ा सा ना डिस्टेंस साइट की तरफ भी होना चाहिए, क्योंकि आईज को जब आप नज़दीक रखते हैं तो एकोमोडेशन होता है लेंस में, बिकॉज Yeah. ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। तो सिलियरी मसल्स स्ट्रेन्ड हो जाती हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट आफ्टर एवरी 10-15 मिनट यू एटलीस्ट स्ट्रेच योर आईज अ लिटिल एंड वॉच समथिंग एट अ डिस्टेंस, है ना? अगर आप Ah, ये yes, sir. करते हैं तो दैट हेल्प्स। Again, washing Yes. your eyes with
वाटर ऑल्सो हेल्प्स, दैट इज अनदर थिंग, है ना? So, Yes. Pranil, I believe you better like to stay indoors than wearing masks too much, is it? Not specifically, sir, because I love playing games outside more Okay, so than video games. you Video go games are outside. just a part of my just to spend some time in like when I getting bored and that stuff. Okay. Now tell me one more thing, that what, ये थॉट आपके माइंड में कैसे आया कि रिसर्च करना चाहिए किसी चीज़ में? ऐसी कौन सी घटना रही आप अब तक के आपकी लाइफ में जिसने आपको इस तरफ प्रेरित किया कि रिसर्च में जाना चाहिए आपको किसी भी फील्ड में? आप जैसे मेडिकल में आपका इंटरेस्ट है, तो ये कैसे? So from the starting, I had an interest in astronomy. Like I've got many medals, won first prize in astronomy Olympiads and challenges. ओह गुड। Uh, I always wanted to be something like researcher in outer space, like researching on galaxies and nebulas and all the other celestial objects. That's why I loved searching the net about these spaces, nebulas, castellar, all these uh, facts about these things. I love these things, and that made the mind that research is all about facts and learning about the facts and more getting into the facts, like how can this be proved, how can this theory and all. It fascinates me, honestly speaking. It fascinates me very much, like why this is working, why this is not working and all. मतलब क्यूरियोसिटी इज है वो चीज़ जिसकी वजह से आपको इस तरह का इंटरेस्ट जग रहा है, नहीं? सही Yes, बात sir, true. है, दैट्स वेरी नाइस। तो आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही प्रणील अब तक की? हाउ वाज इट? Nice. School life is like it goes on. It's nice. ओके, आप मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे? अब आप सिलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट ऑफ द वीक के लिए, लर्नर ऑफ द वीक के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जाहिर सी बात है आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है और काफ़ी बच्चों से अलग है आपकी लर्निंग कैपेसिटी, काफ़ी ज़्यादा वक्त आप देते हैं पढ़ाई में। तो कुछ Yes, sir. स्पेसिफिक क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहेंगे जो आपको हेल्प कर सकें, आपका कुछ भी कंफ्यूजन डाउट कोई भी क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क Sir, I have some doubts, like if I cannot clear the NEET in first attempt, and I don't wish it happens, but if I cannot clear in it first attempt, then should I go for dropout? Like, is it a better option? बहुत बढ़िया प्रश्न किया बच्चे नील आपने। ज़्यादातर बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि कितने अटेम्प्ट देना चाहिए, व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर एमिंग फॉर नीट, है ना? और देखा ये गया है कि वंस और ट्वाइस में ज़्यादातर बच्चे निकल जाते हैं। सो आई कैनॉट से दैट मैक्सिमम स्टूडेंट गेट क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट येस क्वाइट गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट गेट क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर सेकेंड अटेम्प्ट में तो निकल ही जाते हैं। लेकिन कई बार Okay. चांसेस ऐसे होते हैं कि से फॉर एग्जांपल किसी भी कारणवश, क्योंकि इट्स एन एनुअल इवेंट, साल में एक बार होता है, पता लगा एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न हो सकता है, आपकी तबीयत ही नहीं ठीक है अचानक द डे ऑफ द एग्जाम, सो यू आर लाइकली टू मिस। ऐसे कंडीशन में कितने अटेम्प्ट आइडियल होने चाहिए? तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, उससे शायद आपको कुछ आइडिया लग जाए कि द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट और लिविंग अप टू योर ड्रीम और पैशन दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है? Yes. एक कैंडिडेट के बारे में मैं जानता हूँ, काफ़ी पहले की बात है, पुरानी बात है, मतलब मुझसे भी काफ़ी सीनियर हैं, उनके बारे में मैंने बात सुनी और बात बिल्कुल सही है। He tried for All India PMT after class 12 सेम ईयर, नहीं हुआ क्लियर। तो घर वालों ने कहा कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड गेट एनरोल्ड इन सम कॉलेज, ताकि आप अपना कम से कम बीएससी करते रहें। सो ही गॉट एनरोल्ड इन द कॉलेज, बट उनका पैशन था, डॉक्टर बनना ही था। अगले साल भी उन्होंने दिया एंड बाई सम लक ही कुड नॉट क्लियर द नेक्स्ट ईयर। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट दिया उन्होंने बीएससी सेकेंड ईयर में। उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट दिया उन्होंने बीएससी फाइनल ईयर में। मतलब मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब अटेम्प्ट का कुछ ऐसा नहीं था, दे सकते थे वो कई अटेम्प्ट। उसके बाद उन्होंने दिया एमएससी फर्स्ट ईयर में दिया अटेम्प्ट, और
निकल गए, क्लियर कर लिया उन्होंने ऑल इंडिया पीएमटी, ही गॉट सिलेक्टेड। अब घर वालों के सामने ये परेशानी थी कि बच्चा बीएससी कर चुका है, एक और साल में एमएससी कंप्लीट हो जाएगा, एमएससी फर्स्ट ईयर हो चुका था, तो व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच। तो उनके ग्रैंडफादर ने उनसे बात करी, कहते आप मतलब हर साल दे रहे हो, क्या आपको डॉक्टर बनना ही है? कहते नहीं, मेरा पैशन ही यही है। तो अब बताइए ऐसे कंडीशन में अगर उस कैंडिडेट को रोका जाए कि यू शुड नॉट गो फॉर मेडिकल बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्पेंड 4 years ऑफ योर स्टडीज, एक वन मोर ईयर एंड यू विल कंप्लीट योर मास्टर्स, ठीक है ना। Yes, sir. अब देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी बात है समझने वाली, नीट क्लियर करके बहुत से लोग सिर्फ एमबीबीएस करते हैं, आगे की स्टडी नहीं करते। इनफैक्ट कई लोग एमबीबीएस करने के बाद भी अपने प्रोफेशन में नहीं जाते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि प्रोबेबली दे आर नॉट मेंट फॉर इट, या वो ये काम नहीं कर सकते, तो अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। आपने देखा होगा सेम गोज फॉर इंजीनियर्स ऑल्सो, इंजीनियरिंग करके भी बहुत से लोग इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब नहीं करते। नहीं करते, यस सर। अब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है कि जिसको सिर्फ पैसे कमाने हैं, या सिर्फ डिग्री बनानी है, या सिर्फ घर वालों के कहने पर डिग्री कंप्लीट करनी है, तो उस बच्चे को एमएससी कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एमबीबीएस करके भी अगर वही काम करना है तो एमएससी करके वही काम कर लो। से फॉर एग्जांपल टीचिंग में भी बहुत से लोग आ जाते हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं टीचिंग में। तो दो यहां पर ये दो अप्रोच हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, उन्होंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद आपके लखनऊ से ही उन्होंने कंप्लीट करी, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है आपके लखनऊ के पास, सीतापुर के यस सर, पास यस ही सर। है ना। तो उन्होंने वहां से एमबीबीएस किया, उसके बाद एमडी का एंट्रेंस दिया, उसमें भी उन्होंने क्लियर किया, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप सब सुनेंगे तो सोचेंगे ही बिकेम द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑल्सो। तो ये होता है जज्बा। अगर ये जज्बा आपके अंदर है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट डज नॉट मैटर, क्योंकि जिंदगी बच्चे 1 साल 2 साल 4 साल की नहीं है, इट इज अ लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट, समझ रहे हैं। यस सर। तो हमारे देश में चीजों को लेकर के थोड़ा भ्रांतियां हैं, लोगों को लगता नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला तो फिर जिंदगी बेकार है, दूसरा अटेम्प्ट करो ही मत, डोंट वेस्ट योर टाइम। अरे भाई यू हैव टू लिव अप टू योर ड्रीम। मैं कहता हूं कोई 25 यस साल सर। में डॉक्टर बनता है, कोई 30 साल में डॉक्टर बनता है, कोई 35 में भी बन जाए, एमडी वगैरह सब करके एक्सपीरियंस लेकर के, अगर तब भी बन जाए तो भी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। सो यू शुड बी डूइंग एवरीथिंग टू लिव अप टू योर पैशन। अगर आपका पैशन है, पैशन नहीं है तब तो कोई मतलब ही नहीं है, देन यू शुड गो फॉर अदर करियर ऑप्शंस, जब आपको ये है कि नहीं हमें इतने साल में ही सेटल हो जाना लाइफ में, ये चीज। यस सर। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां मैं बता रहा हूं, मेरा कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लेथार्जिक होकर के बैठ जाए कि जी हो जाएगा नीट क्लियर, एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, नहीं, नॉट लाइक दैट। यू शुड जस्टिफाई योर अप्रोच एंड योर स्टडीज टू योर सेल्फ। फर्स्ट ईयर में अगर आप देख रहे हैं कि आपके मार्क्स बहुत पुअर हैं, आपने सेकेंड ईयर अटेम्प्ट किया, आप देख रहे हैं सेकेंड ईयर में भी कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि यू डोंट हैव दैट पैशन। आप ड्रीम कर रहे यस हैं सर। लेकिन आप वर्क नहीं कर रहे हैं, सो देन इट्स नॉट गुड फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट टू गो। अब मैं आपको इसमें भी एक एग्जांपल देता हूं, मेरे ही नोन में एक मेरे फादर के फ्रेंड हैं, उनकी बेटी कुछ साल पहले की बात, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ऑल इंडिया पीएमटी होता था, मार्क्स काफ़ी कम आए, मतलब 200 के आसपास मार्क्स आए। नेक्स्ट ईयर फिर तैयारी करी, फिर 720 में से मार्क्स फिर वही 200, 250, 300। अब उनकी जिद थी कि नहीं मुझे करना ही है एमबीबीएस। अब घर वाले क्या करें, तो उन्होंने, उनके कोई रिलेटिव रहते थे रशिया या यूक्रेन, वहाँ भेज दिया, समझ रहे बात। वहां गई, यस। उसने 1 साल पढ़ाई करी, उसकी समझ में नहीं आया, बोले ये तो टर्म ही नहीं समझ में आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने राइट अप्रोच नहीं फॉलो किया। जब पढ़ने का वक्त था, जब टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देने का वक्त था, उसने ध्यान नहीं दिया। अब जो लैगिंग पहले बन गई दैट विल ऑलवेज बी विथ यू। तो जब तक यस फर्स्ट सर। स्टेप आप क्लियर नहीं करते हैं, यू शुड नेवर गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो उसकी गलती क्या नेक्स्ट। थी? उसकी गलती एमबीबीएस करने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं, हमारे देश में वैसे भी सीट कम है, तो कई बार कुछ मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको भी नहीं मिल पाता, एंड देन रिजर्वेशन इज आल्सो देयर, तो कई तरह की बातें हैं। यस सर। लेकिन आपको अपने आप को जस्टिफाई करना चाहिए कि मुझे वाकई में वो चीजें आती हैं, किसी कारण से मैं नहीं हो पाया, तब आप फॉरेन जाइए। ऐसा नहीं कि फॉरेन नहीं जा सकते, वहां जाकर के भी पढ़ाई करना है। तो पढ़ने का ये अप्रोच होना चाहिए। आई थिंक नील, मैंने आपके प्रश्न का आंसर दिया, और बाकी सारे बच्चे
जो इस सेशन को देख रहे हैं उनको भी एक गाइडलाइंस मिल गई होगी इस Yes, डिस्कशन sir. से, है ना? एनीथिंग एल्स, और कुछ पूछना चाहते हैं नील आप? Sir, one more question. It's a little bit dumb, but why we learn botany when plants are not needed in this medical studies and this medical research? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है नील। नील, आपको पता है इस दुनिया में जो लाइफ है, लाइफ, मैं डिजीज की बात नहीं कर रहा, जब लाइफ है Yes, sir. वो प्लांट्स की वजह से है, ये तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? Yeah, sir, true. है ना? तो यानी कि जिंदगी की शुरुआत ही हुई तो प्लांट से हुई। अच्छा, इसके बाद आप इवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हायर ऑर्गेनिज्म इसलिए इवॉल्व हो पाए कि अर्थ में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हुआ, है ना? Yes, sir. तो Agree. इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप कहीं घूमने जाते हैं, ग्रीनरी ना मिले, अच्छा लगता है आपको? No, यू sir. यू जस्ट सी द कॉन्क्रीट जंगल। आप लखनऊ में किसी मॉल में चले जाएं, कोई ग्रीनरी ना हो, देखिए इंडोर पौधे भी लगाए जाते हैं, है ना? Yes, sir. और हम जहां बैठे हैं देखिए आपके आसपास भी पीछे भी पौधे दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है ग्रीनरी इज समथिंग विच इज सूदिंग। ठीक है? ये तो दो चीजें थी जो मैंने अभी बताई, एब्स्ट्रैक्ट है, ये इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। अब आते हैं डायरेक्ट लिंक पर। प्लांट्स के सोर्स को ही ऑब्टेन करके हम फूड रिसोर्सेज को पाते हैं। हमारे फूड Yes, डायरेक्टली sir. इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है। कोई भी अगर नॉन वेजिटेरियन इंसान भी है तो ऐसा तो है नहीं कि वो वेजिटेरियन फूड कुछ भी नहीं खाएगा, है ना? Yes, sir. नॉन वेजिटेरियन के जो भी सैंपल्स हैं वो सब जो हैं जुओलॉजी के हैं, लेकिन सिर्फ जुओलॉजी के मेंबर्स को खा करके जिंदा रहना मुश्किल है, तो बॉटनी की जरूरत Yes, वहां sir. पर भी पड़ गई। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैं नजदीक आया हूं अप्रोच में, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फार्माकोपिया में जब आप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल होता है, वहां पर भी अगर आपको बॉटनी नहीं आती है तो आपको परेशानी होगी। जैसे मान लीजिए Yes. कैंसर के इलाज में टैक्सोल का इस्तेमाल होता है, एक जिम्नोस्पर्म से निकाला जाता है, माइटोटिक पॉइजन है एक तरह का, यानी कि माइटोसिस को वो रोक देता है। तो ये प्लांट से निकला, जाहिर सी बात है किसी ने रिसर्च किया होगा। तो प्लांट में किस तरह से अल्कलॉइड बनते हैं, आप तो रिसर्चर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, आपको तो प्लांट Yes, पता sir. ही होना चाहिए, है ना? फिर एलोपैथ सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है प्लांट्स का ज्यादातर, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम डील्स विद द एक्सट्रैक्टेड केमिकल्स, है ना? लेकिन Yeah. जो Yes, sir. अलाइड डिसिप्लिन्स हैं, अलाइड डिसिप्लिन जैसे कि आज हमारे देश में मान्यता आयुर्वेदिक को भी है, यूनानी को भी है, होम्योपैथिक को भी है, तो कुछ बच्चे इन साइंस मतलब मेडिकल स्ट्रीम में भी जाते हैं, है ना? तो उसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन है प्लांट्स का, क्योंकि दवाओं का जो सोर्स है वो या तो प्लांट से आप केमिकल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए या प्लांट पार्ट को ही यूज कीजिए। तो ये Yes. बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस वजह से आपको बॉटनी के बारे में पता होना चाहिए। एमबीबीएस में जाएंगे फर्स्ट ईयर में, जाहिर सी बात है आप बॉटनी से रिलेटेड डायरेक्ट कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप डायरेक्ट तो फिजिक्स से भी रिलेटेड नहीं पढ़ते, आप डायरेक्ट तो Yeah. Yes, sir. केमिस्ट्री से भी रिलेटेड नहीं पढ़ते, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, इसी वजह से इन सब्जेक्ट्स को लगाया गया। फिजिक्स को लेकर के भी बच्चे पूछते हैं, आपने तो चलिए बॉटनी के बारे में पूछा, फिजिक्स के बारे में बच्चे पूछ लेते हैं कभी कभी, फिजिक्स की क्या जरूरत? अब बताइए कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उसको पता नहीं हो कि 4 फीट से गिरने पर कितना बड़ा फ्रैक्चर होगा या 10 फीट से गिरने पर कितना बड़ा फ्रैक्चर होगा, उसको जी की वैल्यू नहीं पता, तो कैसे काम चलेगा? होना चाहिए Yes, ना, sir. एक आइडिया होना चाहिए। इट्स नथिंग दैट कि आपको सब पता होना चाहिए। इसी वजह से इन सारे सब्जेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, इसको बेसिस बना करके वो किया जाता है आपके नीट एग्जामिनेशन। इस पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, हमारे देश में जितने एस्पायरेंट हैं मेडिकल के, उस हिसाब से सीट्स काफ़ी कम हैं। आपको भी पता है कि 15 16 17 लाख बच्चे कभी कभी एग्जाम देते हैं, ईयर टू ईयर वैरी करता है। लेकिन टोटल नंबर सीट्स की अगर हम बात करें विद इन द कंट्री, एमबीबीएस, बीडीएस और भी अलाइड कोर्सेज को मिला लिया जाए, तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज़्यादा सीट नहीं है, है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके। इज इट जस्टिस Yes. फॉर ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स? मैं कहूंगा जस्टिस No. नहीं है, नहीं नहीं है। लेकिन अब ये मजबूरी है तो स्क्रीनिंग तो करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जितने बच्चे एस्पायर करते हैं,
उत्तम बात तो ये हो, उचित ये हो कि सबका एडमिशन हो जाए, सबको ट्राई करने का मिले, आगे उनको अच्छा लगे तो वो पढ़ें, नहीं अच्छा लगे तो नहीं पढ़ें। बट Hmm. एज अ डेवलपिंग कंट्री हमारे रिसोर्सेज थोड़ा सा लिमिटेड हैं, तो टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं है किसी के पास। ओनली सीरियस कैंडिडेट शुड गो अहेड। करेक्ट। Yes, sir. अच्छा, एक और बात यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड करूंगा, क्योंकि अब आपने प्रश्न ऐसा पूछ लिया है तो बताना ज़रूरी है ना। बॉटनी मेरा वैसे भी फेवरेट है, और वैसे तो पूरी बायोलॉजी ही पढ़ाता हूँ। हाँ, बात ये है कि एमबीबीएस में एडमिशन होने के बाद एक बार आप पहुंच गए मेडिकल कॉलेज में, ठीक है ना, इसके बाद आपने जो पहले लर्न किया हुआ है वो चीज़ें आपको आगे की पढ़ाई में हेल्प करती। कैसे? आपने जो पेन लिया है अपने 11th 12th में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को तैयार करने का, आपने जो आवर्स की मेहनत करी है, जो 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने की हैबिट डाली, ये हैबिट आपको काम देगी। क्योंकि आपको Hmm. शायद नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद आप जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं इससे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप एक अच्छे Yes, डॉक्टर बन करके निकल पाएंगे। ठीक है। true, sir. इट्स नॉट दैट इजी कि आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए तो आप डॉक्टर बन गए, इट्स नथिंग लाइक दैट। इसके बाद भी जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, वो जो 5 to 6 years का ट्रेनिंग पीरियड है, तो वो अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, शायद एमडी भी ना क्लियर कर पाएं। और आपको भी पता है सिर्फ एमबीबीएस बन करके प्रैक्टिस करी जा सकती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप शायद अपने उस मुकाम तक ना पहुंच पाए जो एज अ स्पेशलिस्ट आप पहुंच सकते हैं, है ना। Yes, sir. तो ये ज़रूरी है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एनीथिंग एल्स यू Yes, वुड sir. लाइक टू नो? No, sir. Nothing else. No, no questions. ग्रेट, सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लर्नर ऑफ द वीक बने, और मेरे ख्याल से अब आप इसी पेस में, इनफैक्ट इस पेस से आगे बढ़ाते हुए अपनी स्टडीज़ पर बिल्कुल ध्यान रखें, एंड कीप लर्निंग प्रॉपरली एंड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू प्रनील। सो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी बच्चे जो भी आप सब ये सेशन को देख रहे हैं, बच्चों अब आपकी बारी है। प्रनील ने वो कर दिखाया है और आगे भी करते रहेंगे। अब आप सबको ध्यान देना है और आप सबको भी इस जगह पर आना है जहां प्रनील बैठे हैं, मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।